ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ لیں۔ میں گھر والوں سے دور پڑھنے کے لیے آیا تھا، اکیلا رہتا تھا۔ مجھے بے چینی سی پیدا ہو رہی تھی اس وجہ سے۔ مجھے کسی کے پیار کی ضرورت تھی۔ ایسے میں مجھے ایک بیوہ عورت ملی جس نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں سب کچھ بھول گیا۔ میں ہاسٹل میں رہتا تھا اور لاہور شہر میں ہی ایک کالج میں پڑھ رہا تھا۔ ہم دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہاسٹل میں رہنا پڑتا ہے۔ میں بھی بہت سارے دوستوں کے ساتھ مل جل کر ایک اچھا وقت گزار رہا تھا اور پھر میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جب میں نے اپنے ہاسٹل کے دوستوں کو لڑکیوں کے ساتھ یاری لگاتے دیکھا۔ ہم کالج سے نکلتے تو میرے سارے دوست گرلز کالج کے باہر جا کر کھڑے ہو جاتے اور پھر وہاں سے نکلتی لڑکیوں کو دیکھتے۔ کئی دوستوں نے تو ان میں سے کئی لڑکیاں بھی سیٹ کر لی تھی، لیکن میرا رجحان صرف اس طرف بالکل بھی نہیں تھا۔ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنے گھر والوں کو اچھی زندگی دے سکوں۔ میرا گھر بہت پسماندہ سا تھا۔ بہت چھوٹے سے علاقے میں میری بہنیں اور والدین بہت مشکل سے گزارا کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی میرے والد نے مجھے پڑھنے کے لیے نہ صرف شہر بھیجا تھا بلکہ میرے ہاسٹل کا خرچہ بھی خود اٹھا رہے تھے۔ اسی لیے میں چاہتا تھا کہ اچھی طرح تعلیم حاصل کر لوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ کچھ عرصے تک تو میں اپنے دوستوں کی رنگ رلیوں میں ہاتھوں میں منہ موڑتا رہا، لیکن روز ایک ہی بات سن سن کر میرا دل بھی اسی طرف ہمکنے لگا۔ وہ لوگ کبھی لڑکیوں کی بات کرتے تو کبھی ان سے ملنے جانے کی، کبھی ان لمحات کی جو لڑکیوں کے ساتھ کسی پارک یا ہوٹل کے کسی چھوٹے سے کیبن میں گزار کر آتے۔ اور اس وقت میرا دل بھی چاہتا کہ میں بھی اس طرح اپنی خواہشات کو پورا کر لوں۔ اور پھر ایک دن میرا دوست کہنے لگا کہ یار اگر تو اتنا زیادہ سوچے گا تو ساری زندگی سوچتا ہی رہ جائے گا۔ ابھی تیری شادی میں بہت سال ہیں، تجھے پہلے اپنی بہنوں کا مستقبل سنوارنا ہے اور پھر تیرا نمبر آئے گا۔ جب تک تو ایسے ہی اپنے باپ کو مارتا رہے گا، کچھ سالوں کے لیے کسی لڑکی کو ڈھونڈ لے، پھر شادی بھلے ہی گھر والوں کی مرضی سے کر لینا۔ میرے سارے ہی دوست محض وقت گزاری کر رہے تھے کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ جب تک ان کا مستقبل سیٹ نہیں ہو جاتا ان کے گھر والے ان کی شادی نہیں کریں گے، اور تب تک کے لیے انہوں نے آسرے کے طور پر لڑکیاں ڈھونڈی ہوئی تھی۔ اپنے دوست کی بات سن کر میرا دل تو یہی چاہا تھا کہ میں بھی دل بہلانے کے لیے کوئی سہارا تلاش کر لوں، لیکن اس کے منہ پر میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ایسے ویسے گھر سے میں نہیں ہوں، اپنی بھی 3 بہنیں ہیں میری، میں کسی لڑکی کے ساتھ وقت گزاری نہیں کر سکتا۔ اسے تو میں صاف منع کر چکا تھا، لیکن ہر وقت میرے دماغ میں یہی بات چلنے لگی کہ اگر کچھ عرصے کے لیے میں بھی کسی سے دل لگی کر لوں تو کیا چلا جائے گا، شادی تو میں بعد میں گھر والوں کی مرضی سے ہی کروں گا۔ مگر مجھے بھی کسی لڑکی کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلتے ہوئے خوف آتا تھا کیونکہ میری اپنی بھی 3 بہنیں تھیں اور اسی لیے مجھے ڈر لگتا تھا۔ مگر پھر میری زندگی میں ایک ایسی عورت آئی جس کی وجہ سے میرا سارا ڈر نکل گیا اور میں بھی اسی راستے کا مسافر بن گیا جس راستے پر میرے سارے دوست چل رہے تھے۔ ایک روز میں کالج سے نکل کر ہاسٹل کی طرف ہی آ رہا تھا کہ میرا فون بجنے لگا۔ میں نے فون پر نظر ڈال دی تو ایک انجان نمبر تھا۔ مجھے فوراً گھر کا خیال آیا۔ میں نے جھٹ سے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے بہت ہی زیادہ گھبرا گیا کہ پتہ نہیں کون عورت ہے، کیا پریشانی ہے۔ میں سیدھا سادہ سا لڑکا تھا، لیکن میرے لیے کسی عورت کا رونا بہت زیادہ معنی رکھتا تھا۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ رانگ نمبر ہے، بس اس سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں۔ اس عورت کے رونے میں ایسی تڑپ تھی کہ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا تھا، اور بہت دیر بعد جب وہ رو کر خاموش ہو گئی تو کہنے لگی کہ وہ بہت ہی زیادہ پریشان حال ہے، اور جب اس کا دل بہت بھر جاتا ہے تو وہ کسی بھی غیر کو فون کر کے آنسو بہا دیتی ہے اور اسے تسلی ہو جاتی ہے، اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کی عجیب و غریب سی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور ایسا کیا مسئلہ ہے کہ آپ غیروں کے آگے رونے لگی ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میں نے جوانی میں بیوہ ہونے کا دکھ اٹھایا ہے، سسرال والوں نے بہت زیادہ پریشان کیا تو میں ایک چھوٹے سے کمرے میں اکیلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی، اور اب کبھی کبھی میں اس تنہائی سے اس قدر گھبرا جاتی ہوں کہ اس طرح آنسو بہا لیتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا تھا اور میں کتنی دیر سوچتا رہ گیا کہ کیا واقعی ہی وہ عورت سچ کہہ رہی تھی یا میرا دوست مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ کیا کوئی عورت کسی انجان کو فون کر کے اس طرح آنسو بہا سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی ذہنی مریضہ ہو۔ میں نے 2-3 بار اس نمبر کو دیکھا لیکن وہ بالکل انجان نمبر تھا۔ میں ہاسٹل میں آیا تو میرے سارے دوست ہمیشہ کی طرح وہی اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کر رہے تھے، لیکن میں اپنی ہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد میرے دوست پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے کچھ بھی نہیں بتایا اور پڑھائی میں مصروف رہا۔
लेकिन रह रहकर मुझे उस औरत का ख्याल सता रहा था। मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं वो कौन थी और किन हालात से गुजर रही थी। फिर 2 दिन और गुजर गए और एक दिन इसी औरत का फ़ोन आया और इस बार वो रो नहीं रही थी, बल्कि बात कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे बार-बार खुदकुशी करने का ख़्याल आता है, मैं क्या करूँ? तन्हा रहने से तो मर जाना आसान लगता है। उसकी ये बात सुनते ही मैं घबरा गया और कहा कि खुदकुशी हराम है, इस बारे में सोचिएगा भी नहीं। अगर आपको तन्हाई से घबराहट होती है तो आप मुझसे बात कर लें। और फिर वो मुझसे बात करना शुरू हो गई। उसने मुझे बताया कि वो 30 साल की एक जवान औरत है, उसका शौहर एक हादसे में मर गया और वो बेवा हो गई। उसका मैका दूसरे शहर में है। यहाँ ससुराल वालों ने इस पर बहुत ज़ुल्म किया, तो एक छोटे से किराए के कमरे में मुंतकिल हो गई और काम-काज करके गुज़र-बसर कर लेती है। वो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह मायूस थी। वो अपने मैके भी लौट कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ उसके भाई और भाभी रहते थे और उसकी अपनी भाभी से भी नहीं बनती थी। काफ़ी देर तक वो मुझे अपने दिल का अहवाल सुनाती रही और फिर खुद ही फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कोई 1.5 घंटा उससे बात की थी और इस 1.5 घंटे में मुझे एहसास हुआ था कि वो बहुत ही अच्छी औरत है, जो हालात की सताई हुई है। और फिर उसने मुझे अपनी तस्वीर भेज दी, जिसे देखकर मैं हक्का-बक्का रह गया। वो इस कदर हसीन थी कि मैं पलकें झपकना भूल गया था। हर खूबसूरत चेहरे की किस्मत भी खूबसूरत हो, ये ज़रूरी नहीं होता। मुझे तो माहीन की किस्मत पर अफ़सोस हो रहा था, जो वाक़ई ही चाँद का टुकड़ा थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ग्रहण लग चुका था। माहीन जैसी लड़की की तो कोई भी लड़का मिल सकता था। फिर क्यों वो तन्हाई की ज़िंदगी गुज़ार रही थी? क्यों इस कदर परेशान थी? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मेरे और माहीन के दरमियान बातों का सिलसिला चल पड़ा था। कभी वो मुझे फ़ोन करती तो कभी मैसेजेस। मैंने इस बारे में अपने किसी भी दोस्त को कुछ नहीं बताया था। मुझे इस औरत से बात करना भी गलत नहीं लगा था, क्योंकि अगर मैं इससे बात ना करता तो शायद वो अपनी जान ले लेती। इसीलिए मैं उसका फ़ोन आने पर उससे बात कर लिया करता था। लेकिन धीरे-धीरे वो मुझसे सवाल-जवाब करने लगी और मैं उसके सवालों का जवाब भी देने लगा। वो मुझसे मेरे बारे में पूछती तो मैं उसे अपने हालात से आगाह कर देता। फिर मेरे साथ-साथ वाले लड़कों को भी मेरी इस बातचीत का इल्म हो गया। हर कोई मुझे छेड़ने लगा, लेकिन मैंने सबसे कह दिया कि वो कोई बड़ी उम्र की औरत है जो बेवा है। मेरा एक दोस्त कहने लगा कि ऐसी ही औरतें तो जाल में आसानी से फँसती हैं। वो तन्हाई का शिकार है, अगर तू थोड़ा दाना डालेगा तो वो खुद ब खुद तेरे आगे पेश हो जाएगी। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और उससे कहा कि मेरी हरगिज़ भी ऐसी नीयत नहीं है। मैं तो बस उसका दिल लगा देता हूँ ताकि कोई उल्टा-सीधा कदम ना उठाए। मेरे दोस्त कहने लगे कि जब वो दिल लगी को तैयार है, तो फिर तुझे क्या एतराज़ है? एक औरत होकर वो एक गैर लड़के से बात कर रही है, तो इसका मतलब यही है कि वो बहुत ही ज़्यादा जज़्बात से मजबूर है। अच्छा होगा तू मौके से फ़ायदा उठा ले। उसके शौहर को मरकर भी सवाल नहीं होने वाला। बहुत आसानी से वो तेरी हो सकती है और ऐसी औरतें तो शादी का वादा भी नहीं लेती, वरना हमारी वाली लड़कियां तो हर रोज यही सवाल करती हैं कि तुम शादी तो करोगे ना। ये कहकर मेरे दोस्त ने कहका लगाया और मैंने खामोशी से मुंह फेर लिया। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी थी और फिर इसी तरह वक्त गुजरने लगा और मेरी इस औरत से बातचीत बढ़ती चली गई। कभी वो 1 घंटा फोन करती तो कभी 2 घंटे, कभी वो सारी सारी रात मुझसे बातें करती और मैं उसकी बातें सुनता रहता। उसकी बातों एक जादू सा था। ऐसा लगता था अगर वो मेरी इस बात से नहीं होगी तो मेरा दिन नहीं गुजरेगा और मैं उस पे हर छोटी बड़ी बात से वाकिफ हो चुका था। उसकी पसंद नापसंद, वो क्या सोचती है, मुझे हर बात का इल्म हो गया था। और कुछ ऐसा ही उसके साथ भी था। मेरे कहने से पहले ही वो मेरी बात समझ जाती थी और फिर हम दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता बेतकल्लुफ़ी बढ़ने लगी। उसे नामहरम मर्द और औरत के दरमियान तीसरा सिर्फ शैतान होता है और हमारे दरमियान भी शैतान ने जगह बना ली थी। कभी कभी माहीन मुझसे ऐसी बात कह जाती कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाता। वो खुलकर अपने जज्बात बयान करने लगी थी, बताने लगी थी कि शौहर की वफात के बाद वो किस कदर तनहा हो चुकी है। और मैं भी पहले तो उसकी बातें सुनकर शर्मिंदा होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे तसल्ली देता और उसे अपनी ही बातों से उसके जज्बात को ठंडा करने की कोशिश करता। एक दिन मैंने माहीन से मुलाकात की तो वो फौरन राजी हो गई। कहने लगी कि तुम मेरे घर चले आओ। वो एक छोटे से एक कमरे के किराए के घर में रहती थी। उसके घर का सुनकर मैंने इनकार कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारे घर आना मुनासिब नहीं समझता, हम कहीं बाहर मुलाकात कर लेते हैं। मैंने उससे एक पार्क में मिलने का कहा तो वो बहुत मुश्किल से राजी हो गई और कहने लगी ठीक है, लेकिन अगली मुलाकात में तुम मेरे घर आना। इस तरह रास्तों में मुलाकात करना कुछ मुनासिब नहीं है। अगर मेरे ससुराल वालों ने देख लिया तो मेरी जिंदगी मुश्किल में आ जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर राजी हो गया और यूं हमारी पहली मुलाकात एक पार्क में हुई। वो असलियत में तस्वीर से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गया था। मैं तो 30 साल का भी नहीं मुझे लगी थी वो। उसके हाथ पांव इतने गोरे थे कि सूरज की रोशनी पड़ने पर पूरी तरह चमक रहे थे। वो मेरे सामने बैठी तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो खुद पर गुजरी क़यामत के बारे में सुनाने लगी और मैंने उसे आंसू देखकर बेसाख्ता ही उसका हाथ पकड़ लिया, उसे समझाने लगा।
कुछ देर बाद उसने मेरे कंधे से सर रख दिया और मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। पहली बार किसी लड़की की गुर्बत हासिल हुई थी और इस बात ने मुझे पिघला कर रख दिया था। बहुत देर तक मैं अपने जज्बात पर काबू रख कर उसके साथ बातें करता रहा और फिर हमने एक दूसरे को अलविदा कर दिया। यूं ही हॉस्पिटल वापस पहुंचा तो मेरे दोस्त अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगे। उन सबको पता चल गया था कि मैं माहीन से मुलाकात करके लौटा हूँ। वो सब मुझे छेड़ने लगे और फिर ना चाहते हुए भी मुझे इस मुलाकात का अहवाल उन्हें सुनाना पड़ा। मेरे दोस्त कहने लगे कि वो खुद तो तुम्हारी झोली में गिरने को तैयार है, तो फिर तुम्हें क्या परेशानी है? अगली बार तुम उसके घर मिलने चले जाना और मौके का फायदा उठा लेना। जब वो तुमसे अपना दुख बयान करेगी तो तुम उसे अपना कंधा दे देना, आगे का रास्ता खुद ही आसान हो जाएगा। मेरे दोस्त मुझे नए नए तरीके समझा रहे थे और मैं इस बार भी उनकी बात को सुकून से सुन रहा था, क्योंकि मैं खुद भी अब बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। एक दफा अगर किसी लड़के को इन चीजों का मजा लग जाए तो फिर उसके लिए वापसी के कदम लेना बहुत मुश्किल होता है। और अब मुझे भी माहिन की दोस्ती ने इस रास्ते पर डाल दिया था कि जहां से वापस पलटना बहुत मुश्किल था। और फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि माहीन कोई जवान लड़की नहीं थी, बल्कि एक बेवा औरत थी और उसके आगे पीछे कोई नहीं था। मैं आसानी से उसे दिल बहला सकता था। इसीलिए 2-4 दिन की बातों के बाद मैंने माहीन से कहा कि मैं उसके घर आकर मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और कहने लगी कि मैं हर चीज़ तुम्हारी पसंद की तैयार करूँगी। और पूरे 1 हफ्ते बाद मैं दोबारा माहीन से मिलने के लिए हॉस्टल से निकल पड़ा था। अब की बार मंजिल मेरी उसका घर थी और उसने जिस इलाके में बताया था वो बहुत ही छोटा और पसमानदा सा इलाका था और मैं कभी इस शहर के इलाके में नहीं आया था। इसका पता ढूंढते ढूंढते मैं इसके घर पहुंच गया था। उसने फूलों का गुलदस्ता भी मैंने उसके लिए खरीदा था। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि पहली बार हम दोनों बिल्कुल तन्हाई में मिलने वाले थे और मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ अच्छा वक्त गुजारूंगा। जब से मेरी माहीन से दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ था, मेरी पढ़ाई पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। सारी सारी रात मैं उससे बात करता तो सुबह कॉलेज में मुझे नींद आती रहती। ना मैं ठीक तरह से लेक्चर ले पाता था और ना ही इम्तिहानात की तैयारी कर पा रहा था। लेकिन फिर भी मुझे इस बात पर अफसोस नहीं था। मेरे दिलो दिमाग पर बस माहीन का भूत सवार हो चुका था। अभी भी मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर उसके दरवाजे पर खड़ा था, जबकि मुझे कुछ ज़रूरी असाइनमेंट बनाने थे। मेरे दरवाज़ा बजाने पर कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खोल दिया और मुझे देखकर खुशी का इजहार किया। दोपहर का वक्त था, उसने मुझे सन्नाटे में ही बुलाया था। जल्दी से मैं घर में दाखिल हुआ तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर मुझे लेकर अंदर चली गई। ये एक छोटा सा एक कमरे का ही घर था। एक तरफ बावर्ची खाना और वॉशरूम बना हुआ था। घर बहुत सादा और साफ सुथरा था। सामान भी ज्यादा नहीं था। शायद माहीन बहुत मुश्किल से ही गुजर बसर कर रही थी। उसने कभी ये बात मुझसे नहीं कही थी, ना ही कभी मुझे पैसों का तकाजा किया था। मैं उसके साथ बैठकर बातें करना चाहता था, लेकिन वो बावर्ची खाने में चली गई और जूस का गिलास उठाकर आई और कहने लगी, गर्मी बहुत है, पहले जूस पी लो और फिर हम एक साथ वक्त गुजारेंगे। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से धड़कने लगा और मैंने जल्दी से जूस का पूरा गिलास खत्म कर लिया। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड तक ले गई और मुझे अपने बराबर में बिठा लिया और उसके बाद उसने मेरे कंधे पर सर रख दिया। कुछ देर ऐसे ही गुजरी थी और फिर मेरा सर पूरी तरह चकराने लगा था और उसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा और जब होश आया तो मेरी चीखें निकल गईं। मैं रस्सियों से बंधा हुआ था, मेरे सर से खून बह रहा था और मेरे सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे। सर में इस कदर टीसें उठ रही थी कि मेरी चीखें निकल रही थी, लेकिन इससे भी ज्यादा परेशानी मुझे पुलिस वालों को देखकर हुई थी। मुझे होश में आता देखकर पुलिस वाला कहने लगा, देखने में तो तू अच्छे घर का लगता है, फिर भी ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? मैंने नासमझी से पुलिस वाले की तरफ देखा तो वो कहने लगा, ज्यादा मासूम बनने का ड्रामा मत कर। एक पराई औरत के घर में घुसकर उसकी इज्जत पर हाथ डालते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तू अपने गांव से यहाँ पढ़ने के लिए आया है या शहर की औरतों की इज्जत से खेलने के लिए? इससे पहले कि मैं उन दोनों कांस्टेबल की बात का जवाब देता, एक पुलिस इंस्पेक्टर गुस्से की हालत में अंदर दाखिल हुआ और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। और फिर जो बात उसने कही वो सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो गुस्से में कह रहा था कि तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में घुसकर मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की? एक पुलिस वाले के घर में घुसने की सजा क्या होती है ये तुझे मैं बताऊंगा। और फिर उसने बड़ी बुरी तरह मारना पीटना मुझे शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने चीख चीख कर उससे कहा कि मैं किसी पुलिस वाले के घर में नहीं घुसा, मैं तो अपनी दोस्त माहीन से मिलने के लिए ही उसके घर में दाखिल हुआ था और उसने मुझे खुद बुलवाया था। मेरी बात सुनकर उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगा कि वो घर किसी माहीन का नहीं बल्कि मेरा घर है और इस घर में मेरी बीवी शहनाज रहती है। मैंने फौरन इनकार में सर हिलाकर कहा कि मैं किसी शहनाज को नहीं जानता, मैं तो माहीन से मिलने के लिए ही गया था और वो एक बेवा औरत है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। वो पुलिस वाला मेरे खिलाफ FIR भी दर्ज कर चुका था और मेरे घर वालों को भी इत्तला कर दी गई थी। कुछ देर बाद ही मेरे अब्बा मेरे सामने बैठे थे और पूछ रहे थे कि ये सब क्या है। अब्बा को देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मैं शर्मिंदगी से नजर चुरा गया था। अब्बा से कहा कि मुझे बताओ कि ये सारा मामला क्या है, क्यों पुलिस वालों ने तुम्हें पकड़ा है?
तुमने किसकी इज्जत पर हाथ डाला है? इस पुलिस वाले ने अब्बा को यही बताया था कि मैं इसके घर में घुसकर उसकी बीवी की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। ना चाहते हुए भी मुझे अब्बा को सारा सच बताना पड़ा। मैंने शुरू से आखिर तक अब्बा को सारा सच बता दिया, लेकिन पुलिस वाला मेरी बात ना माना और फिर जब उसने अपनी बीवी को बुलाया तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो माहीन ही तो थी। मैंने उसे कहा कि माहीन, बताओ इस पुलिस वाले को कि तुम एक बेवा औरत हो, तुमने ही मुझे अपने घर बुलाया था। हमारी पिछले कई महीनों से दोस्ती है। मेरी बात सुनकर माहीन ने इनकार में सर हिला दिया और कहने लगी कि मैं तुम्हें नहीं जानती, मेरा नाम शहनाज है, ये पुलिस इंस्पेक्टर मेरा शौहर है। इसके होते हुए मैं क्यों किसी गैर लड़के को अपने घर बुलाऊंगी? मेरी उम्र देखो और अपनी उम्र देखो। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाते हुए? तुम खुद सन्नाटे का फायदा उठाकर मेरे घर में कूदे और मेरी इज्जत पर खेलना चाहा। वो तो मैंने होश से काम लिया और डंडे से तुम्हारा सर फाड़ दिया, वरना तुम ना जाने मेरे साथ क्या करते। ये कहकर माहीन ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मेरे अब्बा कभी मुझे देखते तो कभी माहीन को। पुलिस वाला कहने लगा कि आपके बेटे को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इसने एक औरत की इज्जत बर्बाद करने की कोशिश की है, इसीलिए ये मामला अदालत में जाएगा। ये सुनकर अब्बा के तो होश उड़ गए। अब्बा कहने लगे कि मेरे बेटे के मुस्तकबिल का सवाल है। मैं अपनी उम्र भर की पूंजी लगाकर इसे शहर पढ़ने भेजा है। मेरे बेटे इकलौते के सिवा कोई सहारा नहीं है। अल्लाह के लिए इसे माफ कर दें। यूँ समझ लें कि इससे गलती हो गई। अब्बा ने पुलिस वाले के आगे हाथ जोड़ दिए, लेकिन वो कहने लगा कि शहनाज ने खुद एफआईआर दर्ज करवाई है, इसीलिए अगर शहनाज चाहे तो कुछ हो सकता है। अब्बा शहनाज के कदमों में बैठ के उससे माफी मांग तलाफी करने लगे। ये देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया कि मेरी वजह से मेरे अब्बा को एक औरत के आगे झुकना पड़ा था। माहीन कहने लगी कि उसकी इज्जत पर आंच आई है। मोहल्ले वालों को भी उसके बारे में पता चल गया है। अब इन लोगों को मोहल्ला ही भी छोड़ना होगा, इसीलिए वो इतनी आसानी से मुझे माफ नहीं कर सकती। लेकिन अब्बा ने उसकी बहुत मिन्नत की तो उसने इस सारे केस को खत्म करवाने के लिए पूरे 1 लाख रुपए अब्बा के हर्जाने के तौर पर मांगे। अब्बा ने फौरन हामी भर ली, क्योंकि वो मुझे जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख सकते थे। अब्बा मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उन्होंने शहनाज से वादा कर लिया कि वो 2 दिन में ही उसे 1 लाख रुपए दे देंगे, वो इस केस को खत्म करवा दे। शहनाज ने कहा कि ठीक है, पैसे देंगे और केस खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 दिन ये लॉकअप में ही रहेगा। और फिर मुझे लॉकअप में बंद कर दिया गया। पूरे 2 दिन बाद अब्बा ना जाने कहाँ से 1 लाख रुपए जमा करके लाए और मुझे आजाद करवा दिया। मैंने रो रो कर अब्बा को यकीन दिलाना चाहा कि मैंने सच कहा था, लेकिन अब्बा पूरी तरह खामोश थे। वो कहने लगे कि अगर तुमने सच भी कहा था तो तुमने कोई नेकी का काम नहीं किया, तुमने गुनाह ही किया है। जब ही तुम इतनी बड़ी मुश्किल में फंसे हो, अगर तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते तो वापस चलो। मुझ पर तुम्हारी बहनों की जिम्मेदारियां भी हैं। अब मैं मजीद तुम्हारे पीछे पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने अब्बा से कहा कि अब मैं पढ़ाई करूंगा, कोई उल्टा सीधा काम नहीं करूंगा। मुझ पर एतबार करके अब्बा मुझे छोड़कर चले गए। बाद में मुझे पता चला कि अब्बा ने अम्मा के सारे जेवर बेचकर मुझे आजाद करवाया। कुछ अरसा गुजरा था और फिर मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि माहीन एक बहुत ही फ्रॉडिया औरत है। उसके साथ उसका शौहर भी सारे फ्लॉड में मुलव्वस रहता है। वो इसी तरह मासूम लड़कियों को फंसाते हैं और तन्हाई में मिलने के लिए बुलाते हैं और फिर इन पर केस बनाकर लूट लेते हैं। इज्जतदार और लोग इज्जत बचाने के लिए उन्हें मुंह मांगी रकम देते हैं। और अपने दोस्तों की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैंने सोचा भी नहीं कि शहर में ऐसे फ्रॉड भी होते होंगे। मुझे चाहिए भी था कि मैं होश से नाखुन लेता, लेकिन अपने दोस्तों की बातों में आकर बेरारवी के रास्ते पर चलकर मैंने सिर्फ अपने अब्बा का नुकसान करवाया था, बल्कि अपनी इज्जत भी गंवाई थी। अब मुझे पूरी तरह होश आ गया है। अब मैं शहर में बहुत संभल कर रहता हूँ। मेरी अपनी ये कहानी बयान करने के पीछे सिर्फ यही मकसद है कि मेरी तरह छोटे शहरों से या गाँव से बड़े शहरों में आने वाले लड़कों को बहुत एहतियात करनी चाहिए। जिस तरह लड़कियों की इज्जत पर आंच आती है, इसी तरह आज के लड़कों की इज्जत भी बर्बाद होती है। माहीन जैसी औरतें बहुत चालाक होती हैं, जो हम जैसे मर्दों को अपने जाल में फंसाकर हमें पूरी तरह लूट लेती हैं। आप लोग भी ऐसी औरतों से एहतियात करें और नाजायज ताल्लुकात इस्तेमाल करने से भी गुरेज करें, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होता।